A very good morning to my dear students. As you know, chapter 3rd, two stories about flying is going on. So students, this chapter is divided into two parts. First part is his first flight and second part is the black aeroplane. So this chapter, two stories about flying, is a combination of two inspiring stories, his first flight and the black aeroplane. These stories show that bravery and cowardice are the relative terms. One should not lose hope while in danger, like the young seagull and the pilot of the plane. They succeeded to achieve their aim when they tried hard to overcome with their fear. So student, today we will read the remaining part of this chapter, chapter 3rd, two stories about flying, part 1st, his first flight. So let's start student. See page number 34. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. Ga called her, she screamed back derisively, but he kept calling plaintively, and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. He leaned out. Derisively means in a manner showing someone that he is stupid. Next is plaintively. Plaintively means hardly. Next one is lean out. Lean out means nailed, means झुकना. जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था सीगल की फैमिली के बारे में, यंग सीगल का जो फियर था फ्लाइंग के प्रति, और पेरेंट्स लीव यंग सीगल अलोन. नाउ वी विल रीड अबाउट हिज हंगर एंड heat increase and young seagull dives for food and he start his first flight. गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. वो चिल्लाता है मांगते हुए कुछ फूड को, अपनी लैंग्वेज में, अपने बोलने की स्टाइल में. गा गा गा. गा कॉल आ, शी स्क्रीम. शी स्क्रीम, शी मीन्स हर मदर. स्क्रीम बैक डेरिसिवली, वो उसने उसे सुना. स्क्रीम, वो चिल्लाई एक स्टूपिड मैनर की तरीके से. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, किंतु वो अपनी बातों को हार्डली तरीके से बोलता रहा, कंटिन्यू रहा वो. एंड आफ्टर ए मिनट, और एक मिनट के बाद में, और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वो खुशी से चिल्लाया. ही मीन्स यंग सीगल. हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ फिश, उसकी मदर ने एक फ़िश का एक पीस लिया. एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम, और उड़ते हुए उसके पास आई. ही लीन आउट, वो उसे लेने के लिए झुका. ईगरली टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस. बट व्हेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, शी हॉल्टेड हर विंग्स मोशनलेस. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak, he waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then, maddened by hunger, he waved at the fish. He dived at the fish. With a loud scream, he fell outwards and downwards into the space. Then a monster's terror seized him and his heart stood still. He could hear nothing, but it only lasted a minute. The next moment he felt his wings spread outwards. The wind rushed against his breast feather, then under his stomach and against his wings. He could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. Eagerly means desire. Tapping means beating lightly. Halted means stopped. Scream means to cry. Monsters means very fearful. And seized means caught.
नाउ वो उत्सुक होकर उसकी इच्छा के अनुसार वो झुका, टैपिंग द रॉक विद हिज फीट, उस रॉक को, उस चट्टान को अपने पैरों से लाइटली मारते हुए, ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर, यह कोशिश करते हुए कि वो अपनी मदर के पास जाए। एज शी फ्लू अक्रॉस, जो कि उसकी चारों ओर उड़ रही थी। बट वैन शी वॉज जस्ट अपोजिट, किंतु जैसे ही वो उसके सामने थी, शी हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन्स स्टॉप्ड, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे वो मोशनलेस हो गए। द पीस ऑफ फिश, जो पीस था फिश का, इन हर बीक, उसकी चोंच में था। ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, वो लगभग उसकी चोंच तक, मीन्स यंग सीगल की जो चोंच थी उस तक पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो उसने एक मोमेंट के लिए वेट किया, वो सरप्राइज हुआ। वंडरिंग वाई शी डिडंट कम नियरर, और सरप्राइज हुआ कि उसकी जो मदर थी वो उसके पास क्यों नहीं आ रही। एंड देन मैडन बाय हंगर, और जबकि वो भूख से पागल हो चुका था, बिकॉज ही डिडंट ईट एनीथिंग फ्रॉम द प्रीवियस नाइटफॉल, सो ही डाइव्ड एट द फिश, उसने उस पर झपट्टा मारा फिश पर। विद अ लाउड स्क्रीम, और तेजी से वो चिल्लाने लगा। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, और वो जो स्पेस था, मीन्स जो समुद्र था, उसका जो तल था, जो तलहटी थी उसके, कभी वो ऊपर उठता कभी नीचे बैठता। देन अ मॉन्स्टर टेरर, मॉन्स्टर्स मीन्स वेरी फियरफुल, जो डर था उसने उसे सीज्ड मीन्स कॉट, उसने उसे पकड़ लिया। एंड हिज हार्ट, और उसका जो दिल था, हार्ट था, स्टूड स्टिल, वो अभी भी कठोर बना हुआ था। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ नहीं सुन सकता था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, किंतु ऐसा 1 मिनट के लिए हुआ। अगले मोमेंट में ही फेल्ट हिज विंग्स, उसने फील किया कि जो उसके विंग्स थे वो स्प्रेड हो रहे थे, फैल रहे थे। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो हवा थी वो उसके आगे के, फ्रंट के जो फेदर्स थे उस पर जाके टकराई। देन अंडर हिज स्टमक, फिर स्टमक के नीचे। एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और दोबारा से उसके पंखों से। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स, वो फील कर सकता था जो विंग्स से जो टकरा रही थी जो एयर उसे। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो ही वॉज नॉट फॉलिंग, वो नीचे की तरफ भी नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. He was no longer afraid. He just felt a bit dizzy. Then he flapped his wings once and he soared towards. Ga 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 called a. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. He answered her with another scream. He was soaring gradually. Soaring means sky high, high sky. And dizzy means an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. Means dizzy हो जाना, means आधी नींद में होना। Swooped means pounced. He was soaring gradually, वो धीरे धीरे आकाश की तरफ ऊपर उठने लगा, कभी नीचे बैठने लगा। He was no longer afraid, अब वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं डर रहा था। He just felt a bit dizzy, उसे थोड़ी सी नींद फील हो रही थी। Then he flapped his wings, फिर उसने अपने पंखों को फैलाया एक बार। And he soared towards, और फिर दोबारा वो बोला गा 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 कॉल आ। His mother swooped, उसकी मदर उसके पास से होकर गुजरी। उसके मदर के जो विंग्स थे, हर मीन्स उसकी मदर के जो विंग्स थे वो बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रहे थे। He answered her with another scream, और फिर वो दोबारा चिल्लाने लगा और उसका आंसर देने लगा। Then his father flew over him screaming. He saw his 2 brothers and his sister flying around him, converting and banking and soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive, soar and curve, shrieking shrilly. Converting means leaping like a horse. Banking means flying with one with higher than the other. Commended means praise. Soaring means high sky and diving means गोते लगाना, dive करना.
देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके जो फादर थे वो उसके ऊपर से गुजरे आवाज़ करते हुए। ही सा, उसने देखा अपने दोनों भाइयों और बहन को उसके चारों ओर उड़ते हुए, कन्वर्टिंग करते हुए, हॉर्स की तरह लीप करते हुए, बैंग करते हुए, उड़ते हुए, आवाज़ करते हुए और डाइव करते हुए। देन ही कम्प्लीटली, फिर वो पूर्ण तरीके से भूल गया दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, कि वो कभी उड़ नहीं पाएगा, इस बात को वो कम्प्लीटली भूल गया। एंड कमेंडेड हिमसेल्फ, और अपने आप की प्रेज करने लगा कि वो डाइव करेगा, शोर आवाज़ करेगा, एंड कर्व करेगा, श्रीकिंग श्रीली। He was near the sea now, flying straight over, facing straight out over the ocean. He saw a vast green sea beneath him, with little ridges waving over it, and he turned his beak sideways. He cawed amusedly. Ridge means wavy edges, and cawed means made a cawing sound. ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो सी के पास में था। फ्लाइंग स्टेट, बिल्कुल सीधे उड़ते हुए, जो उसका फेस था वो बिल्कुल सीधे था ओशियन की तरफ। ही सा वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने देखा कि एक गहरा समुद्र था उसके नीचे। विद लिटिल रीजेज, और नीचे की तरफ जो छोटी छोटी किनारे थे, जो चट्टाने थी। एंड ही टर्न हिज बीक, उसने अपनी बीक को, अपनी चोंच को टर्न किया। एंड कॉव्ड अम्यूजली, और सरप्राइजिंग तरीके से उसने कॉविंग की जो साउंड थी वो निकाली। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड हिज सिस्टर had a day on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped one leg to stand on the green sea. His legs sank on it. He screamed with fright and attempted to again flapping his wings. But he was tired and soaked with hunger and weak with hunger, and he couldn't rise, exhausted. Beckoning means signaling, सिग्नल देना। एग्जॉस्टेड मीन्स फील टायर्ड। उसके जो पेरेंट्स थे, जो ब्रदर्स थे और जो सिस्टर थी, हैड, वो एक जो दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, वो उसके ऊपर थे, जो ग्रीन फ्लोर था, मतलब कि जो समुद्र का जो तल था उसके ऊपर थे। दे वर बैकोनिंग टू हिम, वो उसे सिग्नल दे रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, उस पर चिल्ला रहे थे ताकि वो अपनी फर्स्ट फ्लाइट, जो पहली जो उड़ान है वो भर सकें। He dropped a leg to stand on the green sea. उसे धीरे धीरे कोशिश की और अपनी एक लेग के सहारे वो खड़ा हो गया, अपनी एक लेग को स्टैंड की ग्रीन सी पर। His legs sunk on it, और उसकी जो लेग थी वो उस पर गई। He screamed with fright, वो डर की वजह से चिल्लाया। And attempted to again flapping his wings, फिर उसने धीरे से अपने पंखों को फैलाया। Wait, he was tired, but he was tired, किंतु वो थका हुआ था और वीक था हंगर से। एंड ही कुड नॉट राइज, तो वो उठ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड, वो टायर्ड फील कर रहा था। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इस ये जो स्ट्रेंज एक्सरसाइज चल रही थी इसकी वजह से वो टायर्ड फील किया, उसने एग्जॉस्टेड हो गया। हिज फीट संक इनटू द ग्रीन सी, उसके जो पैर थे, सैंक मीन्स गो डाउन, नीचे की तरफ गए ग्रीन सी की तरफ। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर बाद में उसके जो बेली थी, जो उसकी टमी थी, उसने उस ग्रीन सी को टच किया। एंड ही संग नो फार्दर, और फिर वो आगे नहीं बढ़ा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर तैरता रहा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली, और उसके चारों ओर उसकी फैमिली थी। स्क्रीमिंग praising him, and their beaks were offering him scraps of dog fish. और उसकी जो उसके सामने उसकी जो फैमिली थी वो चिल्ला रही थी, प्रेज कर रही थी, उसकी प्रशंसा कर रही थी, और उनकी जो बीक्स थी, जो उनकी चोंच थी, वो ऑफर कर रही थी उसे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, जो डॉग फिश थी उसके पीसेज को। मतलब अब उसने अपनी कोशिश की, उसने अपनी पहली उड़ान भरने के लिए, बट वो वीक था इसलिए और ऊंचाई पर उड़ नहीं सका। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इसी तरीके से जब उसे मोटिवेट किया गया तो इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान को भरा। सो स्टूडेंट, I hope you must have understood
The explanations of this part means his first flight. So students, listen this video very carefully and try to understand it. And after reading this chapter, you have to complete all the word meanings in your fair notebook. If you have any query, then ask to me on my personal number. Thank you so much and have a nice day.